My spirit guides asked me my wish for the 888 portal. What did I wish for? Hashtag spiritual awakening. So I'm here basically to break some myths around and in the spiritual community here on YouTube. So first of all, what is a 888 portal? So 888 portal is basically 8th of August. August again is the 8th month of the year 2024, which against 2 plus 0 plus 2 plus 4 against equal out to 8. So this date that was just 2 days before, this date was is what do we say, इसे बहुत important date माना जाता है. And definitely 8 is a very strong number, because if you put that, if you put 8 that is vertically, if you put that horizontally, it somehow it tells you about infinity. So definitely 8 is a very beautiful number, a very strong and powerful number. And spirituality में infinity का बहुत महत्व है. इन्फिनिटी मतलब इंटरनल, जो हमेशा से था, इटर्नल, सो समय के भी परे, इंटरनल ट्रूथ्स, इंटरनल विजडम्स, वो सारे इन्फिनिटी में से आते हैं. तो infinity is a very beautiful symbol in many sense, and of course if we go deeper and deeper, then there are a whole lot of things that we can talk around that. Maybe I'll keep another video for that too, one day. And of course, there was a change in energy on the planet. I could feel it. I'm an empath, and I could feel that change in energy. And I have always been a little sensitive person, being an empath. But as I have moved on my spiritual journey, as I gain more and more spiritual and universal wisdom, I gain more and more connection with my spirit, and shed my mind, shed my ego, then I realized more and more, and I became sensitive more and more. It's more of like I was honing on my gifts. I was sharpening my gifts somehow. And that's exactly what spirituality does to you, as more and more you come back into your spirit, you come back to your home, the more and more your spiritual gifts open up. And it's not even a gift, it's like you have always been that. It's just that you have gone into your ego, you've gone too much into your mind, that you've gone away from your gifts that were always yours. You were born with it, your soul has a blueprint, okay, but you've just forgotten it, okay, over time. Even our ancestors were very intuitive, isn't it? They we had all kinds of witches in the past, and they were they had, I don't know, why do we call that spiritual gift? It's not something that we gain, it's something, when we shed our ego and mind, it's something that we come home to, okay? It's not something that we gain, it's not like going forward, it's more like coming backward. So I have a problem calling them gifts, all right? It's not something external, it's always internal. So yeah, this is what I am. I'm an empath, and I also felt a shift in energies. Undoubtedly on 9th of August, I felt that, okay, the planet has shifted. There is a new shift in the energies, and it was pretty good. They were felt like welcoming those energies, and yeah, it was beautiful. And definitely it's an astrological event. 888 portal is an astrological event, but at the same time, in spirituality, we believe that it's only your inside, okay, that decides your outside. Sometimes आउटसाइड इवेंट्स कैसे होते हैं, कभी कभी आउटसाइड इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपको लोअर कॉन्शियसनेस में लेके जाने के लिए काफ़ी काफ़ी ईजी होगा, और कभी कभी आउटसाइड इवेंट्स ऐसे होंगे कि आपको हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाना ईजी होगा, ठीक है. अब बट अल्टीमेटली डिसीजन किसके पास है? आपके पास है, ओके. अल्टीमेट डिसीजन लाइज इनसाइड यू, ओके, कि आप किसकी तरफ इंक्लिनेशन फील करते हो. और अगर आप ऐसे हो कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, तो मे बी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस पोर्टल का. यू विल नॉट बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ दिस portal if you're away from spirituality. And
you don't have to like take it to your heart or feel bad about it, but I mean, we all have been living like that for many many years. Okay, आज ही हमें दुख हो और हम उसको लेके बैठ के रोएं कि यार हमें नहीं पता ये सब चीज़ें होती हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट? Start your spiritual journey. you know it's time that we wake up. There are mass awakenings happening all over the planet. It's time that we all really wake up, to the truth. Let's just I mean, of course you might have your desires and stuff like that, and that's completely okay. Spirituality में कभी ऐसा नहीं बोला I don't have desires. Okay, it's just that जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अपने रियलिटी, अपने ट्रूथ की तरफ जाते जाओगे ना, आपके डिज़ायर्स भी ऊंचे ऊंचे होते जाएंगे. आपके डिज़ायर्स छोटे मोटे नहीं रहेंगे, ठीक है? आपके डिज़ायर्स भी बहुत ऊंचे और बहुत डीप होते जाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई मेंट टू से. All right. So 888 portal is an astrological event, and yes, it is true. And it's also somewhere called manifestation portal. Okay, so somebody who comes from an Indian spirituality, I am so against manifestation. मुझे manifestation से सख्त नफरत है. I don't like manifestation का word in some ways because it's so, people are so lost when it comes to manifestation क्या होती है? आप हर सेकंड मैनिफेस्ट कर रहे हो यार. आप किसी एक दिन पे बैठ कर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ एवरी डैम सेकेंड. योर स्पिरिट इज़ मैनिफेस्टिंग इट, ठीक है? और आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है. आपके माइंड को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है. पर एवरीथिंग इन योर लाइफ, सब आप ही उसका ओरिजिन हो. यू आर द ओरिजिन, यू आर द मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ. आप चाहे कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट ही करते हैं, ठीक है? एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने में, और कभी, और ये मैनिफेस्टेशन में हमेशा हमें ये क्यों होता है कि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो. कभी कभी योर सोल नोज एग्जैक्टली वॉट टू मैनिफेस्ट. माई सोल मैनिफेस्टेड लेसन्स फॉर मी. कुछ बुरी सिचुएशंस में मैनिफेस्ट करी है मेरे सोल ने, and उस वक्त it didn't make sense, but I just bow down to it. Okay, I bow down to whatever situation came to my life. I learned from it. I had my spiritual experience. I learned from it spiritually and then I moved on. ठीक है? तो ये मैनिफेस्टेशन से मुझे सख्त नफरत हो जाती है. वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी ना, वेस्ट में ना स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल कभी कभी मुझे लगता है दे आर फ्लोटिंग इन द एयर. ओके, इंडियन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. I mean, yes, sometimes it's all good and nice to float in the air and it's good, but Indian spirituality आपको रूट से जोड़ती है, आपको ज्ञान से जोड़ती है, आपको नॉलेज से जोड़ती है, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ्स से जोड़ती है. And that is something very amazing about Indian spirituality. It makes you connect to your breath. Very mundane, very boring, and it makes you connect to it. It makes you connect to, simple processes of life. ओके, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज ये आपको बहुत ग्राउंड करता है, ठीक है? तो मुझे इंडियन स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, सब चीज़ें. सो मैनिफेस्टेशन से मुझे थोड़ी तकलीफ़ है. तो 888 पोर्टल एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल है. एंड खैर, तो मुझे मेरे स्पिरिट्स गाइड ने बोला दैट आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क, ओके, फॉर दिस 888 पोर्टल. सो अब मुझे नहीं पता वो लोग टेस्ट ले रहे थे मेरा या क्या चक्कर था. एंड कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या वो टेस्ट ले रहे हैं, ये सोच रहे. बस तुम वो करो जो तुम हो. ओके, बी ऑथेंटिक. बिकॉज अगर तुम वो टेस्ट पास नहीं भी कर पाए, लेट्स से, ठीक है, तो ये तो अर्थ स्कूल है यार. इसके अंदर तुम्हें कोई ग्रेड नहीं, कोई मार नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं समझे नेक्स्ट टाइम समझ लोगे यार. नेक्स्ट टाइम नहीं समझ आया उसके और नेक्स्ट टाइम समझ लोगे. कहते हैं ना, तो वो एंडिंग नहीं जब तक वो हैप्पी ना हो. इट्स सो ट्रू. एंड अर्थ स्कूल नॉर्मल हमारे स्कूल्स की तरह नहीं है. ओके, सो मुझे नहीं पता व्हाट दे वर अप टू, बट दे आस्क्ड मी टू मैनिफेस्ट, टू आस्क फॉर माई विशेस, एंड एक्चुअली मैं 3-4 दिन से थोड़ी परेशान भी थी
बिकॉज ऑफ अ few थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, एंड आई वाज लाइक यार ये ऐसा क्यों है, यार ये चीज़ ऐसी क्यों है, यार ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, एक्सपीरियंस ऐसा क्यों है. तो आई डोंट नो, दे आस्क्ड मी फॉर इट, ओके, to tell me what are my wishes for. So yeah, before coming to the point, I want to say a few things. This is quite, I am feeling little vulnerable, and little uncomfortable to, talk about my spiritual or mystical experiences, because one thing that really happens is that whenever you talk about these mystical experiences or spiritual experiences, there is, I have a fear that my audience may start to hallucinate, and I don't want that to happen, okay, because मैं खुद अपनी जर्नी बताऊँ तो it honestly it has been like 7 years, when I've been really consciously treading this path of spirituality. But yes, उससे पहले भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, yes, I was into spirituality always. मुझे याद है मैंने 12th के बाद, 12th छोड़ते मैं सबसे पहले भगवत गीता पकड़ी थी. खैर, ऐसी बात नहीं है कि भगवत गीता पकड़ते हो आप तो हो आप एकदम स्पिरिचुअल हो गए हो, नहीं. बट हाँ, मुझे लगता है मैं हमेशा से सीकर थी, हमेशा से क्वेश्चंस तो थे मेरे अंदर, मेरे हार्ट के अंदर. तो शायद मैं कभी कोई एक लाइन नहीं बना पाऊँ कि यार मैं एक स्पिरिचुअल सीकर ना इसके बाद बनी. बट हाँ, कॉन्शियसली अगर मैं बोलूँ कि हाँ इसके बाद तो मैं काफ़ी कॉन्शियस हो गई कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना या लेना है, तो वो कहीं ना कहीं 7 years, आई वुड से दैट आई हैव बीन ऑन द पाथ फॉर 7 years, राइट. And I had my spiritual awakening last year. It was like, and spiritual awakening is not a one day thing or a 1 year thing. आप वो धीरे धीरे वो एक पॉइंट आता है, वो धीरे धीरे छोटी चीज़ें होती हैं. फिर एक पॉइंट आता है कि जब yes, spiritual awakening really happens to you. So I had my awakening last year, and yeah, it was big experience, definitely. So तो वो जो क्योंकि मैं हमेशा से एक लॉजिकल लड़की थी. वाई आई वॉज लॉजिकल? बिकॉज हमारा मैट्रिक्स ऐसा है. हाँ, ये जो माया है, ये माया इन्होंने ऐसी बनाई है, इससे हमें प्रोग्रामिंग दी गई है टू बिकम वेरी लॉजिकल, टू stay into a mental realm, to stay into mind a lot, okay. हमें माइंड में रखना सिखाते हैं बहुत, इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, ठीक है. तो मैं भी बहुत लॉजिकल लड़की थी, मतलब while I was very young, very young, so I remember I had a lot of faith in Krishna. My mother used to worship Krishna a lot, so I had a faith in Krishna. But when I started growing up, and I had I became very questionable, for the existence. मेरी एक रील भी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहो तो, how I discovered Krishna. It might give you an idea like how I went through a change of my perceptions. But I was a very logical girl, and I never believed, और of course हमारे दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं, है ना. मतलब बहुत सारे फ्रॉड्स हैं हर रिलीजन में यार. हर रिलीजन में आप देखोगे कोई ना कोई फ्रॉड आपको मिल ही जाएगा, जो पैसे कमाने के लिए ना भगवान के मंदिर को भी व्यापार बना लेते हैं. तो मुझे तो हमेशा से लगा कि ये जादू वादू कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब लोगों को से पैसा चाहिए. एंड आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम वेरी लॉजिकल, एंड आई विल स्टे ऑन दैट पाथ, एंड बट जब मैं जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आई, जैसे जैसे मैंने एनलाइटेंड मास्टर्स को पढ़ा, इट फेल्ट सो डिफरेंट. ऐसा लगा कि यार देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड इवन आवर लॉजिक, एंड मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, बट मैं उन्हें रिजेक्ट करती रहती थी while I was on to my path and everything. मैं उनको रिजेक्ट करती रहती. ऐसा थोड़ा ना हो सकता है. मेरे को लग रहा मुझे सच में ऐसा लगता था थोड़े थोड़े टाइम में मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ, मैं पक्का हेलुसिनेट कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है. एंड देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और स्पिरिचुअलिटी को बहुत स्लो प्रोसेस ही रहना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी ओवरनाइट थिंग नहीं है. स्पिरिचुअलिटी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखो, हम भगवान से दूर चले गए हैं, वी हैव गॉन अवे फ्रॉम द कोर, ठीक है. हम भगवान जी से दूर चले गए हैं, हम उनसे उस कोर से दूर चले गए हैं. अब वापस जाने में हमें टाइम तो लगेगा ना, इज़न्ट इट. हील होने में, वापस जाने में टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ठीक है. ये कोई सोल्यूशन, ये कोई माइंड का सोल्यूशन नहीं है. ये तो योर होल बॉडी, योर होल स्पिरिट हैज़ टू गो बैक, ठीक है. तो वो प्योरिटी लाने में, वापस जाने में टाइम लगता है.
अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो लेट्स से अभी मेरे नेबरहुड पार्क में ना एक पेड़ काटा गया है और उसको ना एकदम बीच में से काटा गया है, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, एक ब्रांच तोड़ लो वो फिर भी उग जाते हैं यार। वो पूरे इतना सुंदर पेड़, इतना पुराना पेड़, और उसको एकदम ऐसे बीच में से काट दिया गया। तो अब मैं उसको पेड़ को देखती तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे ग्रो करेगा, मतलब अब अगर मैं किसी एक प्लांट को रूट से निकालूं, ठीक है, तो फिर भी उसका कुछ वहाँ पर एक नया प्लांट लगा दूँ तो भी उसको उगना ईजी रहेगा, ठीक है। बट उसे उस प्लांट को कहीं ना कहीं हमने एक ट्रॉमा दे दिया, उसे बिल्कुल बीच में से उसे आधा अधूरा कर दिया, उसे बीच में से काट कर। एंड नाउ इट्स गोना टेक इट टाइम, उसको एक फ्रेश प्लांट को उगने में जितना टाइम लगेगा उससे कहीं ज़्यादा उसको हील होने में और फिर उसको उगने में टाइम लगेगा। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे साथ भी यही हुआ है, वी हैव गॉन अवे फ्रॉम आवर गॉड। हम वी आर लिटिल ट्रॉमेटाइज्ड इन मैनी वेज, एंड इट विल टेक टाइम टू गो बैक टू गॉड अगेन, ठीक है। तो या एंड मे बी मोर देन यूजुअल, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और मैं क्योंकि बहुत लॉजिकल लड़की थी तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा अपने लॉजिक को धीरे धीरे छोड़ने में। एक्सपीरियंसेस हुए, एंड आई डिड माई रिसर्च वेरी प्रॉपरली, वेरी डेडिकेटली। तो आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन मैजिकल एक्सपीरियंसेस यूज्ड टू हैपन इन माई लाइफ, मैंने उन मैजिकल एक्सपीरियंसेस को भी कहीं ना कहीं अपने लॉजिक, मतलब आप कह सकते हो पहले मेरा लॉजिक इतना था, फिर जब मैजिक मेरी लाइफ में आया तो मेरा लॉजिक और बड़ा हो गया। व्हाट आई मीन, मेरा चीज़ों को समझने का नज़रिया और बड़ा हो गया, मेरा लॉजिक और बड़ा हो गया। पहले मेरा लॉजिक छोटा सा था, फिर जैसे मैजिक मेरी लाइफ में आया, उस मैजिक को समझने में एवरीथिंग, आई हैड टू बी रियली स्लो विद मी। आई कैन नॉट रश, आई कैन नॉट रन, बिकॉज ऐसे ना हो कि मैं ट्रूथ से दूर चली जाऊँ। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने नीचे ज़मीन को भी फील करूँ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने नीचे अर्थ को भी फील करूँ, मैं ज़मीन से जुड़ी रहूँ। ऐसे ना हो कि मैं बिल्कुल ही जस्ट गो क्रेजी ओवर माई मैजिकल एक्सपीरियंसेस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो मुझे कहीं ना कहीं ग्राउंड से भी उतना टच में रहना था। सो मैंने, आप ये कह सकते हो कि मेरा लॉजिक का सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है। पहले मेरा लॉजिक इतना था और फिर लॉजिक धीरे धीरे और ऐसे इतना बड़ा सा हो गया। तो आप ऐसे समझ सकते हो चीज़ों को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपने ऑडियंस के लिए डर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हैलुसिनेट कि इसको स्पिरिट गाइड्स मिल रहा, हमें भी दिख जाएंगे, हमें नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, क्या पता आपके लिए कुछ अलग हो, आपका पाथ कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट हो। सबको ये कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं यार, जैसे सेकंड क्लास में सबकी एक ही टेक्स्ट बुक होती थी और सबको वही पढ़ना होता था, वही पोएम रटनी पड़ती थी और वैसे ही सबके मार्क्स आते थे। ये वो वाली चीज़ नहीं है। ये यूनिवर्स का स्कूल है भाई। इसमें तो आप डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट पाथ्स, हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ पाथ्स, ठीक है। एंड येट कहते, और कितनी अजीब बात है ना, कहते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है लेकिन फिर भी हम उसको एक राय के दाने में भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है, ये बहुत वास्ट है, इतना ऐसे ऐसे लगेगा देखने में कितना केओटिक है, लेकिन जब आप इसके और समीप जाते जाओगे, जब इसके और क्लोज जाते जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, और आपको समझ आने लगेगा कि ओ वाह दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब आप कहते हैं ना, आपका लॉजिक ना बड़ा 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 होता जाएगा। तो डोंट लीव योर लॉजिक, आप अपने पेस पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चलो, आप अपने एक्सपीरियंसेस को देखो, किसी और के मैजिकल एक्सपीरियंस, किसी और के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे आपको फंसने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आई एम लिटिल स्केयर फ्रॉम माई ऑडियंस। आई होप मेरी ऑडियंस मैच्योर है और वो हमेशा अपने ही एक्सपीरियंस पे आगे चलेगी, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं यूट्यूब पर, आज भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी, मतलब मुझे नहीं पता, क्या पता वो सच में हो गए हैं वो पागल सच में दे हैव लॉस्ट देयर माइंड में भी। और एंड ऑल्सो ये माया, ये मैट्रिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैनलिंग करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो चैनलिंग कर रहे हैं गॉड को, बट उन्हें पता नहीं है कि वो चैनलिंग कई बार गोस्ट को भी करते हैं, कई बार ट्रिक्स्टर बींग्स को भी करते हैं। तो मुझे पता है माया मैट्रिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑडियंस में से कोई भी फंसे, तो इसलिए मैं काफ़ी डर रही हूँ अपना एक एक्सपीरियंस से शेयर करने में, बट इसलिए मैं अभी
मैंने स्टोरी स्टार्ट ही नहीं करी, बट पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिए बहुत सारे कि भैया ऐसे 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 है, तो ताकि इट कीप्स यू ग्राउंडेड. ओके, इट कीप्स यू ग्राउंडेड. ज़मीन से जुड़े रहो आप, ऐसे हवा में मत उड़ जाना कि भैया हमें भी ये सब हो रहा है जो इसके साथ हो रहा है, और ऑल ऑफ दैट. तो एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस बहुत मैच्योर है, जस्ट होप सो. सो या, सो आफ्टर ऑल द डिस्क्लेमर्स, आई थिंक मैंने सारे डिस्क्लेमर्स दे दिए हैं. Just a second, please. Let me just read. I just hope I've, talked about it. Yeah, I did my research and everything, as I told you. मैंने Enlightened Masters को पढ़ा. मैं Enlightened Masters से बहुत, जुड़ी रही, ताकि मुझे, एक सच्चा ज्ञान मिलता रहे. मैं विजडम से, नॉलेज से काफ़ी जुड़ी रही, ताकि जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस होते गए मैं उनको एक्यूमुलेट करती गई, एंड देन मैंने अपना लॉजिक उसमें बढ़ाया. I think I just repeated, but still I just slow. Yeah, I think I have done. Yeah, I have done everything. मैंने बोल दिया सब. Sorry for that little bit of delay. Actually मैं अपनी वीडियो पे स्टॉप नहीं करना चाहती because I hate editing. I hate editing. Okay. और मुझे आती भी नहीं है ऑनेस्टली. जैसे मुझे सिर्फ मर्ज करना आता है, मुझे सिर्फ वीडियो कट करना आता है, मुझे सच बोलो एडिट करना भी नहीं आता. तो और मुझे आई कांट रियली अफोर्ड दैट मच टाइम ऑल्सो. लेट्स नाउ कम टू माई एक्सपीरियंस. तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था. तो मेरे को ये बोला इन्होंने, मेरे स्पिरिट्स को, एंड ऑफकोर्स स्पिरिट गाइड्स बोलते नहीं हैं. इट्स लाइक आई एम सेंसिटिव, और स्पिरिट जो स्पिरिचुअल रियल्म होता है, जब आप स्पिरिचुअल रियल्म से जुड़ते हो, तो दे डोंट रियली कम्युनिकेट टू यू विद योर लैंग्वेज, बट यू जस्ट फील दैम. ओके, you just feel their language. Okay, you understand their silence. It's like that. Okay. तो अब जैसे एनिमल्स थोड़ी ना एक दूसरे से बात करते हैं, वो तो चुप पे बैठे रहते हैं और उनको पता होता है कि इट्स काइंड ऑफ अ नोइंग. ओके, और स्पिरिट ऐसा ही है. स्पिरिट आप ये समझो कि स्पिरिट के 10 सर होते हैं, 10 दिमाग होते हैं, उसको 10 चीज़ें एक ही बार एक ही दम पता होती है. ऐसा होता है स्पिरिट की शक्ति ऐसी होती है. ठीक है, ये तो हम 5 सेंसेस आ गए हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इन पर रिलाई करने लग गए हैं. बट अगर हम जैसे जैसे कोर की तरफ जाते हैं, 5 सेंसेस से दूर जाते हैं, तो बहुत अलग सेंसेस भी हैं हमारे, टू रियली अंडरस्टैंड लाइफ, और communicate on the other side of the spiritual realm. Okay, so yeah, so I have a way of communicating to the other side of the realm, and yeah, and it's not like communicating more, it's more of like listening, है ना. बात करना इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना सुनना होता है. ठीक है. तो या, सो आई वॉज आस्ड. तो एकदम से ना मैंने बोला, जैसे मैं काफ़ी दिनों से परेशान भी चल रही थी कि यार मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. तो मुझे को एकदम से आया कि यार मेरा माइंड थोड़ा सा इनोसेंट सा है, और सो आई जस्ट क्विकली एकदम से क्विकली मेरे दिमाग में आया यार मेरे को फेमस कर दो. मेरे दिमाग में फीलिंग्स आया फेमस कर दो मेरे को. फिर मैंने सोचा वेट, फेमस मतलब कहीं ना कहीं देयर विल बी सम पार्ट ऑफ यू दैट विल गो इन फेमस ऑल्सो, है ना. पॉजिटिवली फेमस होगा और नेगेटिवली फेमस भी हो सकता है. फिर मैंने वेट, आई डोंट नो मुझे फेमस होना नहीं होना. देन and I just quit my job last year, and right now I am being really supported by my parents financially. I'm 28 and I'm being supported by my parents right now, so not a good feeling. So I just said कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दो यार. मतलब मैं 1 साल हो गया छोड़े हुए जॉब एंड एवरीथिंग. मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए अब. And there are reasons for what's going on in my life right now, but I don't want to discuss. But yeah, there are reasons for what I quit my job and stuff like that. But and still there are no reasons to why I quit my. It's so weird. Let me not discuss. I don't want to discuss that part. So yeah, I mean so yeah. So I asked यार कुछ कर दो, फाइनेंशियल सिक्योर कर दो. एंड देन आई थॉट यार वो तो हो ही जाएगा.
मतलब आज तक होता ही आया है। मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, कुछ ना कुछ लगा कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, तो कुछ होगा ना, फिर ना कुछ कुछ ना हो ही जाता था। तो मुझे लगा ये भी आई ग्रेजुअली मैं कैसे ना कैसे ढूंढ ही लूँगी, कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। आई एम श्योर मैं कोई ना कोई वे ढूंढ ही लूँगी, एंड आई थिंक आई मैनेज मनी। इसमें क्या है, इतना ईजी नहीं है मेरे लिए, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार हो ही जाएगा। वाई टू पुश इट, वाई टू पुश इट। देन मैंने क्या सोचा, एक तो मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सोचा था। अरे हाँ थर्ड थिंग जो मैंने सोची वॉज कि यार देर आर फ्यू पीपल अराउंड मी that I really love, but sometimes they just kind of, you know, they kind of misunderstand me, और मुझे ऐसा फील होता है कि यार sometimes they, I get very distracted around them. I get very, they're quite interfering sometimes around me. Though I love them and everything, but and of course they are also living their own unconscious lives and everything like that. So I said, yaar kuch inka kar do. And then I was like, no, wait a minute. I mean, it's let it be up to God को पता है यार कि किसको क्या, and maybe, it's, सोचो एक एप्पल ट्री सोचने लग जाए कि भैया मैं तो इसको एप्पल दूंगा नहीं और इसको एप्पल दूंगा ईगो ऐसी होती है। तो हम ये सोच नहीं सकते कि हमारे आसपास कौन लोग रहेंगे, कौन लोग हम में नरिश करेंगे और किन लोगों से हम नरिश होंगे। लेट इट बी नेचुरल, लेट इट बी यूनिवर्सल डिसीजन। यूनिवर्स को डिसाइड करने दो यार, ठीक है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इट्स, और मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे मैंने देखा है, समझा है कि कैसे यूनिवर्स उससे फ्लो करता है। इट जस्ट फ्लोज through you, okay, and it flows through you, and you don't have to really do anything about it, और ये मैंने एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, तब जाके मुझे ये लेसन समझ आया है। मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि यूनिवर्स फ्लो करता है, लाइफ फ्लो करती है और एकदम सही है, आपको शायद इन्फॉर्मेशन की तरह लगेगी, बट मेरे एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं आ चुका है, आफ्टर मैनी एक्सपीरियंसेस। और मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, तो टेक योर ओन टाइम, ओके, लेट एक्सपीरियंसेस हैपन टू यू, लेट योर अंडरस्टैंडिंग बिकम एक्सपीरियंशियल, and then gradually you will move on to your path of spirituality. तो so मैंने बोला, and then I thought नहीं यार, ये तो मेरी ईगो आ रही है बीच में, and I cannot think like that, and I cannot think कि कौन मेरी लाइफ में होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। I completely surrender it to God. and सच में ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल ही उसमें आ जाते हो, क्या कहते हैं, जब आप बिल्कुल अपनी फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो, विच इज़ योर व्हेन यू, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो लाइफ में, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वैसी चीज़ें देता है जो उसको देनी चाहिए, ठीक है। एंड वी आर नो बडी टू क्वेश्चन दैट, एंड वी आर नो बडी टू पुश एनी प्रोसेस। और धीरे धीरे फिर मैंने सोचा मैं एक पेपर पेन लेके बैठती हूँ, यार ये मैं क्या बकवास सोच रही हूँ, तो मैं एक पेपर पेन लेके बैठती हूँ और मैं फिर उस पर लिखती हूँ कि व्हाट आई रियली वांट। और मैं पेपर पेन लेके बैठी हूँ और मैं कोई विश सोच ही नहीं पाई। आई जस्ट कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग। आई वाज लाइक ये कर लो वो कर लो, एंड इट वॉज लाइक कि यार एक्चुअल में मैं क्या मांग सकती हूँ। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ सो परफेक्ट, येस इम्परफेक्टली परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट है ना वो बस मेरे छोटे से दिमाग को लगता है कि यार ये इम्परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, बट देखा जाए तो यूनिवर्स इज सो परफेक्ट इन देयर ओन वेज। मैं किसी चीज़ को पुश नहीं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज वो मेरे नेचुरल फ्लो को बिगाड़ देगा। तो अभी जो है जैसा है मुझे, और अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं भी हैं तो वो मेरे लिए कुछ लेसन्स लिखे हैं यार। अगर मैं वो लेसन्स नहीं लूँगी, देन हाउ विल आई लर्न फ्रॉम इट, हाउ विल आई लर्न फ्रॉम इट। और मैं वो लर्न नहीं करूँगी तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी। तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाई उस पेपर पेन पर,
लिटरली मैं कुछ लिख ही नहीं पाई उस पेपर पेन पर. एंड आफ्टर सम टाइम आई वॉज लाइक what can I ask? And then I just ended up asking for dhokla. I mean, मैं खुद भी ऑर्डर कर सकती थी, बट माई मॉम वॉज लाइक यू शुडंट ऑर्डर, यू शुड हैव घर का खाना एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो हाउ इंडियन मॉम्स आर. सो आई वाज लाइक चलो कुछ नहीं होता. एंड देन माई cousin brother, he got us dhokla and also vada pav. So then I just had dhokla, I had vada pav, and then I went to a very peaceful sleep. और वो जो 3-4 दिन से मेरे दिमाग में प्रॉब्लम चल रही थी ना कि यार ये ठीक नहीं है लाइफ में, ये ठीक नहीं है लाइफ में, वो चला गया. आई वॉज लाइक ये मेरा छोटा सा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ जजमेंट बनाता है मेरी खुद की लाइफ को लेके, यू नो, चीज़ों को लेके. एंड इट्स ऑलवेज सो स्टूपिड. एंड मुझे सिर्फ एक पेपर और पेन लेके बैठना था और शायद उसमें लिखना था कि क्या चाहती हूँ मैं ठीक करना अपनी लाइफ में. मैंने सोचा कि मैं कुछ ठीक कर ही नहीं सकती हूँ. जो जैसा है वो वैसा है, वो मेरा ही बनाया हुआ है. यू नो, अगर मेरी लाइफ में कुछ इम्परफेक्शंस भी हैं तो वो मेरी ही बनाई हुई है. अगर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें, तो मैं जब वो चीज़ समझ जाऊँगी तो वो इम्परफेक्शंस भी चली जाएंगी. एंड ट्रस्ट मी, कोई परफेक्टली परफेक्ट कोई चीज़ होती ही नहीं है. हमें इन्होंने ऐसा प्रोग्राम कर रखा है, इन व्हाट दे हैव डन इज़ कि गॉड को प्रोडेस्टल पे रखो. गॉड एकदम परफेक्ट है, वो एकदम त्याग की मूर्ति है, और तुम तो एकदम नालायक लोग हो. यू नो, ह्यूमंस को, यस ह्यूमंस बहुत दूर हो गए हैं गॉड से. इतने दूर हो गए हैं कि हम उन्हें सिर्फ मंदिर में ढूंढते हैं यार, अपने अंदर नहीं ढूंढते. हम इतने दूर हो गए हैं. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. सो इन्होंने गॉड को बिल्कुल पेडेस्टल पे बिठा रखा है कि वो त्याग की मूर्ति है, और तुम देखो तुम एकदम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. मुझे लगता है अगर सच में गॉड होंगे तो ही वुड ऑल्सो बी वेरी इम्परफेक्टली परफेक्ट, यू नो, इन मैनी वेज, यू नो. और हमारा छोटा सा दिमाग एज़ यूजुअल उन्हें कभी नहीं समझ पाएगा, यू नो. एंड आई रिमेंबर मैं सो दीप जी मेरे गुरु हैं. एंड उन्होंने वो एक बार ऐसे लेक्चर ही दे रहे थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बोला था. कहते अगर भगवान कृष्ण अगर यहाँ पे सच में होता तो शायद वो किसी ना किसी ठेले पे कब पक्का वड़ा पाव एंजॉय कर रहे होते, या फिर वो कब कोई शॉपिंग कर रहे होते या कुछ कर रहे होते. तो और उनका जो डिस्क्रिप्शन भी है, मैंने उनकी आई एम कृष्णा पढ़ी थी, उनका जो डिस्क्रिप्शन भी है गॉड का वो काफ़ी ह्यूमनली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ के. यू नो, मतलब आज तक हमें, यू नो, एक पेडेस्टल पे एक मैजिकल बीइंग दिखा दिया. यू नो, मैजिक तो ह्यूमंस के अंदर भी है, हम भी तो गॉड से ही आते हैं यार. तो हम मैजिक हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी गॉड रिजाइड करता है. तो एक वो चीज़ है कहीं ना कहीं, यू नो, जो स्पिरिचुअलिटी दूर करती है. यू नो, भगवान, रिलीजियस भगवान ना थोड़ा सा ऐसे एकदम यंग एंग्री मैन की थोड़ी सी इन्होंने ऐसे इमेज बना रखी है हमारे दिमाग में, यू नो, कि भगवान एकदम यंग एंग्री मैन है रिलीजियस लोगों ने. बट स्पिरिचुअलिटी में जितना जितना आती है तो मुझे लगता है यार भगवान तो प्रेम का सागर है. जितना मैं उसे महसूस करती हूँ, जितना मैं उसे समझ पाती हूँ, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो प्यार का सागर है. वो बिल्कुल जजमेंट नहीं देते हैं, एंड मुझे एक्सेप्ट करते हैं मैं जैसी हूँ. मेरे अंदर मैं इम्परफेक्टली परफेक्ट हूँ. मुझे डांट भी देते हैं कई बार. ओह गॉड, बट 2 बार डांट पड़ी है. एंड अब कह सकते हो स्पिरिट गाइड्स, वॉट एवर यू वांट टू से, मतलब जो भी है, बट इट्स लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द रियल. ठीक है, और मैं ये भी मानती हूँ कि गॉड कोई एक नहीं है, देयर आर मैनी गॉड्स, यू नो. किसी और दिन बात करेंगे. तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि यू नो, इतना अलग कर दिया गया ना ह्यूमैनिटी को, बिल्कुल ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है. ठीक है, कि वो देखो गॉड को देखो तो, और तुम अपने आप को देखो. कहीं ना कहीं शेम और गिल्ट में डालते जा रहे हैं ह्यूमैनिटी को, रिलीजियस, यू नो, जो लीडर्स हैं या जो भी, मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को एक गिल्ट और शेम में डालते हैं. यू नो, दैट यू कैन नेवर बी लाइक गॉड और समथिंग लाइक दैट. एंड जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आती हूँ तो मेरा गॉड का एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल होता जाता है, इतना ब्यूटीफुल होते जाता है. एंड एंड और जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आती हूँ मुझे महसूस होता है कि इट्स नॉट अबाउट, यू नो, ऑब्टेनिंग और अचीविंग गॉड. इट्स मोर अबाउट बिकमिंग लाइक हिम.
you know, becoming beautiful, non-judgmental, becoming love like him, you know. So that's my experience of, you know, a spiritual god, is what would want to say here. So thank you for listening to this video, 35 minutes and more. अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने सुनी है मेरी वीडियो, थैंक यू सो मच. शेयर कर दो यार अगर आपको सच में अच्छी लगी और आपको यू नो फील हुआ कि या शी इज़ मेकिंग सेंस और समथिंग लाइक दैट. प्लीज़ डू शेयर इट विद योर कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स में या कहीं भी, आपको जैसा जहाँ लगता है आप कर सकते हो. एंड लाइक, सब्सक्राइब, you know, it will be very helpful for my channel. So thank you.